Good morning, class 9th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the sixth chapter of your textbook Beehive. The chapter entitles My Childhood. This chapter is related to our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Right? This chapter is an extract from his autobiography named Wings of Fire. Okay, so this is page number 68, My Childhood. Can you think of any scientist who have also been statesman? Statesman means a person who issues official statement, right? Like politicians. So when you think about a scientist who later on become a statesman, a great political leader, right? Although in the beginning Dr. Kalam was not having interest in politics, but when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, he proposed his name for the post of President, and in this way he became the President of India. So when you think about any scientist who later on become statesman, generally the name that comes to your mind is of Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalam, जिनकी परियोजनाएं अंतरिक्ष सुरक्षा और आणविकी अभियांत्रिकी में भारत का उनके अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए कार्य, सुरक्षा विशेष रूप से मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए कार्य और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए कार्य जो है, इन सब कार्यों ने भारत देश का एक प्रकार से नेतृत्व किया, उनको पथ प्रदर्शित किया कि भारत 21वीं शताब्दी में जब प्रवेश कर रहा था उस समय, और अपने इन कार्यों की बदौलत वो हमारे भारत देश के 11वें राष्ट्रपति बने सन 2002 में. In his autobiography, now autobiography is a book which is written by the author himself. Okay, here Dr. APJ Abdul Kalam wrote his own autobiography entitled Wings of Fire. He speaks of his childhood. Okay, so this chapter entitles My Childhood. Here the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam. So in his autobiography Wings of Fire, he just narrated about the incidents of his childhood. Let us start. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. So here Dr. APJ Abdul Kalam is writing about his own childhood, especially about his birth. So he said that he was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. Now you know, island is a piece of land surrounded by water on all sides. We call it island. In Hindi we call it Dweep. Town of Rameshwaram in the erstwhile means former,
भूतपूर्व मैड्रास स्टेट। तो मेरा जन्म हुआ था तमिल मध्यम वर्गीय परिवार में, जो कि रामेश्वरम नामक द्वीप पर रहता था, जो कि भूतपूर्व मद्रास राज्य में स्थित है। माय फादर जैनुल आबिदीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Innate means inborn. Okay, a quality of feeling in one's nature. So, Kalam Sahib's father, Mr. Jainul Abidin, had neither much formal education. तो उनके पिताजी जैनुल आबिदीन, न तो उनके पास अधिक औपचारिक शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, और न ही ज़्यादा धन संपदा। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सब हानियों के बावजूद, ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम, उनके अंदर एक महान जन्मजात बुद्धिमत्ता थी, एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक वास्तविक उदारता, अंतरात्मा की उदारता उनके अंदर थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, तो उनकी एक आदर्श सहयोगिनी थी उनकी माँ, राइट, आशी अम्मा उनका नाम था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे। आशी अम्मा वॉज ए ग्रेट लेडी। शी नेवर रिफ्यूज प्रोवाइडिंग फूड to anyone who comes to her house. It can be a stranger also. So here Kalam Sahib says, I do not recall the exact number of people she fed every day. यहाँ कलाम साहब कहते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं आ पा रहा सही संख्या में कितने लोग को प्रतिदिन हमारे घर में भोजन मेरी माँ के द्वारा कराया जाता था। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन कलाम साहब कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि ज़्यादा अधिक संख्या में जो है हमारे परिवार के सदस्यों की तुलना में, उससे भी अधिक संख्या में बाहर के लोग प्रतिदिन आकर हमारे घर पर भोजन करते थे। तो इतनी महान और दयालु हृदय की उनकी माँ आशी अम्मा थी कि कोई भी व्यक्ति उनके घर पे आए वो बिना भोजन किए नहीं जाता था, राइट। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं का तात्पर्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मैं उन बहुत से बच्चों में से एक था, एक छोटे कद का, इसमें अपेक्षाकृत कोई विशिष्ट प्रकार के गुण नहीं थे, राइट। तो कलाम साहब का जन्म जो है एक लंबे कद के और सुंदर माता पिता के घर में हुआ था, और कलाम साहब उन बहुत से बच्चों में से एक थे जो उनके माता पिता के संतानें थी। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स ए हाउस that is built by forefathers, your father, your grandfather, your great grandfather, like that. पैतृक
एंसेस्ट्रल को हिंदी में कहते हैं पैतृक। तो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और इस घर का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो उनका ये घर एक अच्छा सा बना हुआ बड़ा सा पक्का मकान था, जो कि चूने के पत्थर और ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। और उनका घर स्थित था रामेश्वरम की मस्जिद गली में। मॉस मीन्स मस्जिद। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल comforts and luxuries. Austere means simple, strict and severe. एक सादगी पसंद, कठोर अनुशासन प्रिय, गंभीर। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. उनकी जो सादगी पसंद, कठोर अनुशासन प्रिय पिताजी जो थे, वो सभी प्रकार की अनावश्यक सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की वस्तुओं को घर में रखने की बात को टालते थे। यानी कि उनके घर में कोई ऐशो आराम और जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं वो नहीं थी। ओके, बिकॉज हिज फादर बिलीव्स इन simple living and high thinking. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. तो किसी प्रकार से सभी आवश्यकताएं, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो उपलब्ध कराई जाती थी परिवार के सदस्यों को, जैसे भोजन, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Materially means भौतिक रूप से, emotionally means भावनात्मक रूप से। तो कलाम साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो पूर्ण रूप से सुरक्षित, यानी कि भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी मेरा बचपन सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1939 में। When I was 8 years old, so when Second World War started in 1939, Kalam was simply 8 years old child. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. Tamarind कहते हैं इमली को। इमली जो खटाई वगैरह में काम में आती है, that is called tamarind. For reasons I have never been able to understand. कुछ ऐसे कारण जिनको कलाम साहब समझने योग्य नहीं थे। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड इरप्टेड इन द मार्केट। एक अचानक मांग इमली के बीजों की जो है बाज़ार में उठने लगी। इरप्टेड का मतलब ब्रोकआउट, राइट। तो एक अचानक इमली के बीजों की मांग जो है मार्केट में, बाज़ार में तेज़ी से होने लगी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट। तो कलाम साहब इमली के पेड़ के नीचे जाकर इन इमली के बीजों को इकट्ठा किया करते थे
और एक किराने की दुकान पर जाकर बेच दिया करते थे, जो कि मस्जिद गली में स्थित थी। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। एक दिन का इमली के बीजों का संग्रहण जो है उनको बड़ी शान से 1 आने की कमाई करवाता था, और उस ज़माने में 1 आने की भी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani is the news of a newspaper. It's the name of a newspaper. ठीक है, तो उनके जो साले थे कलाम साहब के, जलालुद्दीन, वो कलाम को इस विश्व युद्ध से संबंधित कहानियाँ कहा करते थे, सुनाया करते थे, और अगले दिन जो है वही कहानियाँ जो उनके साले के द्वारा सुनाई जाती थी वो दिनामणि नामक समाचार पत्र की मुख्य समाचार हुआ करते थे। ठीक है, तो कलाम साहब के जो साले साहब थे जलालुद्दीन, वो उन्हें युद्ध के बारे में कहानियाँ या किस्से सुनाया करते थे, और जिनको बाद में वो दिनामणि नामक समाचार पत्र के मुख्य समाचारों में पढ़ा करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. कलाम साहब का जो क्षेत्र था वो बिल्कुल अलग थलग था। आइसोलेटेड मीन्स सेपरेटेड, राइट। तो पूर्ण रूप से उनका ये क्षेत्र इस विश्व युद्ध से अप्रभावित रहा। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। अलाइड फोर्सेस यानी कि संयुक्त सेनाएं, द आर्मीज ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे फॉर्म अलाइड फोर्सेस। इन्होंने एक संयुक्त सेना बनाई। तो लेटर ऑन सून इंडिया वाज फोर्स टू जॉइन अलाइड फोर्सेस। तो बाद में शीघ्र ही जो है भारत, उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो भारत को भी संयुक्त सेनाओं में शामिल होना पड़ा। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और एक प्रकार का आपातकाल की घोषणा जो है देश में उस समय कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ the suspension of train halt at Rameshwaram station. Halt means stoppage. पहली आकस्मिक घटना जो है, पहले जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी उसके इस ठहराव को स्थगित कर दिया गया, यानी कि अब वो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं ठहरती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. तो जो समाचार पत्र थे उसके बंडल उनको फेंका जाता था चलती ट्रेन के अंदर से रामेश्वरम रोड पर, जो कि रामेश्वरम और धानुषकोडी नामक कस्बे के बीच में था। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. तो जब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव समाप्त हो गया, ठीक है, तो उनका जो साला था
उनका जो चचेरा भाई था शमसुद्दीन, उसके ऊपर इस बात का दबाव पड़ा, जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटने का काम करता था, कि वो अपनी सहायता के लिए किसी व्यक्ति को रखे जो कि चलती हुई ट्रेन से फेंके गए बंडलों को पकड़ सके। और स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी कि मुझे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन ने बंडल समाचार पत्र के पकड़ने के काम पर रख लिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो इस प्रकार से उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन ने कलाम साहब की सहायता की उनकी पहली तनख्वाह प्राप्त करवाने में। राइट, वेजेस का मतलब मजदूरी, मजदूरी का मतलब तनख्वाह। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. आधी शताब्दी बाद भी मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ उस गर्व की भावना का एहसास। सर्ज ऑफ प्राइड मीन्स गर्व का एहसास, जो कि मेरी पहले पैसा पहली बार जो मैंने कमाया था अपने जीवन में, पहली बार कुछ मजदूरी करके या कुछ काम करके मैंने जो पैसा कमाया था, वो पैसा कमाने के बाद जो गर्व की भावना का एहसास मुझे हुआ, वो आज भी आधी शताब्दी बाद भी मैं महसूस कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Inherited qualities are those qualities which are transmitted from parents to their children. वंशानुगत गुण जो होते हैं, माता पिता के गुण जो संतान में आते हैं, वी कॉल देम इनहेरिटेड क्वालिटीज। तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कुछ वंशानुगत गुण होते हैं, कुछ वंशानुगत चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, जो कि इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, जो कि विशिष्ट रूप से सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण से संबंधित होती हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय द फिगर ऑफ ऑथोरिटी। और बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है कुछ निश्चित विशेष तरीक़ों से, उसके माता पिता के द्वारा उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है, उसमें अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। तो यहाँ कलाम साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फादर और मदर से किन किन विशेष चारित्रिक विशेषताओं को ग्रहण किया। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो मैंने पैतृक गुण के रूप में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मेरे पिता से प्राप्त किया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड faith in goodness and deep kindness, and so did my brothers and sisters. तो कलाम साहब ने ईमानदारी और आत्मानुशासन का गुण उनके पिता से और उनकी माँ से उन्होंने अच्छी या भलाई की चीज़ों में विश्वास करना, गहरी दयालुता की भावना का गुण जो है अपनी माँ से प्राप्त किया, और इसी प्रकार से इन तमाम गुणों को प्राप्त किया गया उनके 3 भाइयों और बहन के द्वारा। ठीक है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स
in my childhood. Now, Kalam Sahib is telling to the readers about his school life. So I had 3 close friends in my childhood. मेरे 3 बहुत नज़दीकी मित्र थे मेरे बचपन में. Right? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. मेरे 3 घनिष्ठ मित्रों के नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox यानी one who believes in all traditional customs and rituals. रूढ़िवादी, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले. तो ये तीनों लड़के जो थे वो जो है रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves. तो बच्चे के रूप में हम में से किसी ने कभी कोई भेदभाव या अंतर महसूस नहीं किया हमारे बीच में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे धार्मिक अंतरों के कारण, एंड अपब्रिंगिंग और पालन पोषण के तरीक़ों के कारण. इन फैक्ट रामानंद शास्त्री was the son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. वास्तव में रामानंद शास्त्री जो है पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे. द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में उन्होंने कलाम साहब ने ये पुजारी का, कलाम साहब के मित्र ने, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री जो थे, उन्होंने उनके पिता से रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी का पद ग्रहण कर लिया. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अरविंदन जो है वो जो पर्यटक वहाँ पर घूमने आते थे, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति, और पिलग्रिमेज को कहते हैं तीर्थ यात्रा. तो पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री. तो अरविंदन जो है वो तीर्थ यात्रियों को यातायात के साधन उपलब्ध कराने के व्यवसाय में चला गया. एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे. और शिव प्रकाशन जो है वो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया दक्षिण भारतीय रेलवे के अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर फॉर टुडे, राइट. एंड आई विल टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज योर लेक्चर नंबर 1. Okay, so please mention, I have already mentioned on blackboard, this is lecture number 1. Thank you.